ઓકે, આપણે ગયા વખતે 22 શ્લોક સુધી ચર્ચા કરી છે, એટલે ગીતાના 5મા ચેપ્ટર ઉપર, ને આજે 23માંથી શરૂ કરશું. પણ આજે ફરીથી વાંચતો તો ત્યારે મેં કીધું એક વખત આપણે વાત કરીએ ફરીથી, ખાલી 1 મિનિટ માટે, કે આપણે શરૂ કર્યું એઝ એ ફિલોસોફી સ્ટડી સર્કલ. અને ફિલોસોફીમાં હિન્દુ હોય, જૈન હોય, બુદ્ધિસ્ટ હોય, ક્રિશ્ચિયન હોય, કોઈ પણ ફિલોસોફી હોય, કન્ફ્યુશિયસની ફિલોસોફી હોય તો પણ ચાલે. અને શરૂઆતમાં આપણે થોડા વર્ષો જનરલી ફિલોસોફી સબ્જેક્ટ તરીકે ચર્ચાઓ શરૂ કરેલી, અને પછી આપણે હવે ગીતા શરૂ કર્યું છે, અને ગીતા બહુ ઉત્તમ શાસ્ત્ર છે ફિલોસોફી માટે, એટલે આપણે ચાલુ પણ રાખ્યું છે. તો પછી વચ્ચે વચ્ચે ઓફકોર્સ બીજા કંઈ પણ આપણે ટોપિક આવી જાય ફિલોસોફીના તો એ ચર્ચા કરી લઈએ છીએ. અને એક સિમિલર ઇસ્યુ આપણે પહેલાં પણ ડિસ્કસ થયો છે, જ્યારે આજે મે બી થોડીક જસ્ટ ફોર એ ફ્યુ મિનિટ્સ વી કેન સે કે અત્યારે અમેરિકા અને ઇઝરાયેલે ઈરાન ઉપર હુમલો કર્યો, ભયંકર તારાજી થઈ રહી છે, અને જ્યાં જે ઘરમાં માણસો મરી જતા હોય એને તો બહુ ભયંકર દુઃખ થાય. હવે આમાં આપણું અદ્વૈત ક્યાં આવ્યું ને ભક્તિ ક્યાં આવી, એના ઉપર કોઈએ પોતપોતાના વ્યૂઝ કેવા હોય તો જરા કહો. આ એટલે એક કાળચક્રનો ભાગ નથી રશ્મિનભાઈ. હા. આ એક કાળચક્રનો ભાગ નથી. કારણ ઓકે. કે આવું વર્ષોથી આપણે એમ કહેતા હતા કે રામ રાજ્ય એ હમ. ત્રેતા યુગ હતો. હા. પણ એ વખતે બી રાવણ હતો, એ વખતે બી કેટલાય અસુરો ને રામે પોતે એનો સંહાર કરેલો હતો. કરેક્ટ. એટલે આ જે આપણી જે ઓરિજિનલ આપણે વેદમાં જે કહીએ છીએ કે એક ક્રિએશન, મેન્ટેનન્સ અને ડિસ્ટ્રક્શન, હમ. આવું કોઈક ને કોઈક રીતે જુદી જુદી રીતે ઘણી વખતે ધરતીકંપ, પૂર કે પછી વોર, હમ. 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 એટલે મેન મેડ ઓર ગોડ મેડ, પણ આ ટ્રુ. ડિસ્ટ્રક્શન જ કરે છે. હવે એ લોકો શું કામ, આપણે લાગે છે કે આ બિચારા હમ. ખરેખર નિર્દોષ માણસો મરી જાય છે. હવે એમની નિયતિ હશે, કારણ કે એવું કોઈ કર્મ તો ન હોય કે કોઈક થર્ડ પાર્ટી બે લડે અને એના એક ગાંડો માણસ બોમ્બ નાખે અને એમાં મરી જાય. હમ. 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 એટલે આ એક મોટી ફિલોસોફીનો જ ભાગ હશે. એટલે આ ફંડામેન્ટલ ક્વેશ્ચનો ગણી શકાય, કે આ ક્વેશ્ચન એટલે આપણે ઓર્ડિનરી વાર્તાઓ કરીને પતી નથી જતું, એને બહુ ડીપલી વિચારવું પડે. અને બહુ વધારે ડીપલી વિચારવું પડે તો અશોકભાઈ કટારિયા જ આપણને જવાબ આપે. વી આર ઓલ ઇયર્સ. Yes, no, no. Devirte, I have said this earlier also. હા. દેવીરતે મિહિરભાઈ અત્યારે કીધું કે એક વ્યક્તિ બોમ્બ નાખે હમ. અને અમુક લોકો they leave this world. Now this instance is just similar, you may take it that way, is nothing just similar as if 10 people are going in a bus, or maybe હમ. 50 people are going in a bus, they meet an accident and all 50 die. હમ. Or take for example 250 people when past 240 people about died in an Air India plane crash, યસ. or this bombing. યસ. देखिए ऐसा क्यों हुआ अचानक? See, इसमें as a individual, as a जीव, we have only even, and also as a student of Vedanta, I would say we take it in only two ways. One, હમ. as a jeev, as a human being, we pray for that what happened was not correct, and I cannot do anything on that. That's one part. And apart from that, when we are studying Vedant, जब हम वेदांत पढ़ते हैं હમ. तो उसको इस तरीके से देखें कि हाँ ऐसा अचानक ऐसा क्या, जैसे मेहर भाई ने कहा, ऐसा क्या कर्म हुआ कि सबको एक साथ ही मरना पड़ा. लेकिन भगवत गीता में कृष्ण ही कहते हैं कि कर्म की थियरी समझना आसान नहीं है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. और जैसे क्यों उसी समय पे सब, मैं क्योंकि ये जब एयर इंडिया क्रैश के बाद हमारे एक स्वामी जी हैं,
Swami Abhidanand ji. He is from हम्म South Africa and very knowledgeable Swami. And even after studying Vedanta, it is sometimes very difficult to digest this कि ऐसा कैसे कि हम्म सब लोग एक ही जगह इकट्ठे हो रहे हैं और फिर वो कर्म का थियरी काम कर रहा है. स्वामी जी एक्सप्लेन दिस, ही सेड द सेम थिंग कि भगवान खुद ही कहते हैं कि कर्म को समझना इतना आसान नहीं है, और कैसे वो संजोग था कि कैसे वो बना है कि वो कुछ लोग उसी देश में रह रहे हैं जहां पे ये परिस्थिति हो रही है. और ये तभी संभव है कि जब मेरी ये एग्जिस्टिंग बॉडी, मेरी जो भी मेरी इच्छाएं हैं, मेरे जो पास्ट एक्शंस जो मेरे इकट्ठे किए हुए हैं, उसके लिए ये फुलफिल करना अब पॉसिबल नहीं है. तो नेचुरली ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहां पे आई एज अ जीव हैव टू मतलब ट्रांसेंड दिस बॉडी एंड मूव टू अनदर बॉडी. एज अ जीव दिस विल ऑलवेज हैपन. एंड हाँ, समझना डिफिकल्ट है. सो जब समझना डिफिकल्ट है तो उसको एक ही तरीके से कह सकते हैं कि उसकी हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी हुआ वो मतलब भगवान जो भी है उनको अपने शरण में ले. इतना ही कर सकते हैं, बाकी इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकते. नहीं, आई फुल्ली एग्री. पण टुडे वी विल डिस्कस ए फ्यू श्लोक्स where this issue may come up. Let us see how we go ahead and discuss. In the same matter, sorry, Rashmin bhai, I have already, matlab, a couple of times I've shared in the group. This हाँ, question is also asked to Swami Chenmayananda ji, and he ओके. has explained this, and I have हम्म shared those photographs couple of times in the group, and he says the same thing. कि we don't know how ये कर्म कैसे काम कर रहा है कि सब लोगों को इकट्ठा उसी जगह कर रहा है और फिर ये परिस्थिति उत्पन्न हो रही है. एक जो महाभारत की कहानी है, हम्म, कि कौरव 100 कौरव एक साथ में, मतलब एक युद्ध में मारे गए. हाँ, तो वो 100 लोगों का क्या कर्म होगा. तो आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा महाभारत में. उसका पहला चैप्टर शुरू होता है, उसके पहले ये सब कहानियां आती है कि एक शिकारी था. वो शिकारी ने जंगल में गया शिकार करने को, और एक बड़ा पेड़ था, उसके ऊपर बहुत सारे पक्षी थे. तो वो शिकारी ने ऐसी जाल डाली कि पूरा पेड़ वो जाल के नीचे कवर हो गया. मतलब अंदर जो पक्षी थे कोई भाग नहीं सकते हैं. फिर उसमें आग लगाई. अभी वो आग में जो पक्षी मरे, वो कितना दर्दनाक होगा. हाँ. तो उसके बाद में बहुत सारे भाव गए. हर एक जीव अलग अलग जन्म हुआ, अलग अलग कर्म हुए. जब सभी के कर्म आए, ऐसा संयोग हुआ, तभी वो शिकारी धृतराष्ट्र बना. और वो 100 पक्षी जो मारे गए थे वो उसके बेटे बने. हाँ. और धृतराष्ट्र को कैसे दुख दिया. एक एक करके कौरव मारा गया और वो मरते गया, और धृतराष्ट्र को भयंकर दुख होते गया. वो इतना दुख हुआ कि जब 100 के 100 कौरव मारे गए, तभी कितना अत्यंत दुख हुआ होगा. तो ये महाभारत की कहानी में तो कर्म का सिद्धांत ही वापस आता है. अगर महाभारत से अलग अद्वैत की तरफ से देखे, तो जो भी मारे गए महाभारत में, या वो वृक्ष पर जो पक्षी थे मारे गए, या तो आज की तारीख में ईरान में और इजराइल में वगैरह जगह पे जो लोग मारे जाते हैं, वो क्या दुखदायक है. नहीं, अगर इवन एट द टाइम ऑफ महाभारत रश्मि, हाँ हाँ, जो वॉर था वो तो पांडव और कौरव के बीच में ही था. करेक्ट. एंड दे इनवाइटेड ऑल द वॉरियर्स, ऑल द यस. किंग्स ऑफ द वर्ल्ड. यस. और वो लोग भी खत्म हो गए. अठार तो अक्षौहिणी. उनको क्या लेना देना था. हाँ. हाँ, कौरव तो जीतेंगे या पांडव जीतेंगे, तो उनको हाँ, क्या मिलने वाला था. बराबर है. तो एक्चुअली महाभारत वो इतना बड़ा विस्तार है, हाँ, कि वो सभी का तो खुलासा दे नहीं सकते हैं. तो खाली ये खुलासा दिया है कि, और वो कॉम्प्लेक्स है. ऐसा एक 1+1=2 इतना सिंपल भी नहीं है. हाँ. क्योंकि ये जो पक्षी मारे गए थे, वो भी उनके जितने जन्म हुए, वो जन्म में उन्होंने भी कुछ कुछ दुष्कृत्य किए होंगे, तभी वो वॉर में मारे गए. वो पूरा जीवन जिए नहीं.
और भीष्म पितामह ने भी कुछ तो कर्म किए होंगे कि वो बिस्तर, वो बाण शैया पर पड़े और अपनी नजर के सामने अपने, जिसको वो प्रपौत्र कहते थे, वो लोग एक के बाद एक के बाद एक सब मारे गए। और उनके बाद में उनको देखना पड़ा कि कितनी तबाही हो गई। तो ऑफ कोर्स कर्मणा गति गहनो, ये जो कृष्ण भगवान ने कहा है कि वो इतनी गहन है कि अपने को समझ में नहीं आ सकती है। मगर अभी जो मैं स्टेटमेंट करता हूँ वो महाभारत और रामायण के बाहर उपनिषद लेवल का है। आत्मा, मतलब ये अभी जो हमें श्लोक आएगा, हम श्लोक की बात करेंगे। उस श्लोक में कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने शरीर को वो अपना अपने आप मान लेता है, तभी सुख और दुख होते हैं। जब कोई भी व्यक्ति मान ले कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर तो आएंगे जाएंगे, गीता में भी ये यही वाक्य लिखा है कि जैसे हम कपड़े बदलते हैं ऐसे आत्मा शरीर बदलता है। तो उसके बाद में दुख का कोई सवाल ही नहीं होता है। आत्मा को क्या है? आत्मा सदा आनंद में ही है, और उसको न मृत्यु से, अपने मृत्यु से भी दुख नहीं होता है, और अपने मित्रों के या सगे संबंधी के मृत्यु से भी दुख नहीं होता है, तो क्योंकि फिर ये ये वॉर तो फिर ये वॉर में भी कोई प्रश्न नहीं है, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, आई हाँ। एग्री विथ यू, या। So, if we can think at the Advaita level, then there is no misery at all. Then all this sansar is a drama. राम। हमने बहुत बार सुना है, साधु लोग बोलते हैं कि ये संसार तो ड्रामा है। हाँ। और ये प्रेमानंद जी महाराज है, उन्होंने बहुत बार कहा है, भाई यहाँ बाजार लगी है, आपको क्या खरीदना है वो आपके ऊपर है। हाँ। आप चाहे तो क्या बोल सकते हैं उसको, दुख अपना लो खुद, क्योंकि जो भी होता है आत्मा को अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। तो परमात्मा की इच्छा के बगैर उसके साथ क्या हो सकता है? तो इसी के लिए अंत में साधु कहते हैं, भैया ये नाटक है। वो एक तरह का जवाब है। और दूसरी तरह का जवाब है हरि इच्छा। भाई इससे आगे ज्यादा मैं बात आपसे नहीं कर सकता हूँ। उसका मतलब क्या? कि अगर अद्वैतवादी साधु मिले, दो चार पांच जो भी मिले, वो अद्वैतवादी साधु, अभी हम जो बात कर रहे हैं अद्वैत की, कि आत्मा हर हमेशा आनंद में ही है, और ये तो हर एक उपनिषद कह रहा है। आप आत्मा हो, आप मिहिरबाई नहीं हो, आप दिनकर नहीं हो, आप आत्मा हो। तो आत्मा लेवल पर सुख ही सुख है, दुख का कोई सवाल ही नहीं है। मगर दुख का नाटक हम कर रहे हैं। ये बात हमने पहले भी कही थी यहीं अपना ग्रुप में। और आज थोड़े सब श्लोक हम जब भी चर्चा करेंगे, शायद थोड़ा वो भी बाहर आवे। लक्ष्मण भाई बात बिल्कुल सही है, जैसे आपने कहा ये आत्मा के लेवल पे बिल्कुल। लेकिन क्या हाँ। होता है जब फाउंडेशन इसका जवाब निर्भर करता है मैं प्रश्न क्या करता हूँ। हम्म। सबसे पहले मैं करेक्ट। कहता हूँ कि हम्म। जो इजराइल में लोग हैं या जो दूसरे देशों में जो भी हैं जिन पे वो मर रहे हैं, हाँ। तो जब वहां आई सी दैट एज एन इंडिविजुअल, बराबर। तो या अगर मैं उसको इंडिविजुअल की तरह देखूंगा तो आई विल कनेक्ट इट विद कर्म। करेक्ट। अगर मैं टोटालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम्म। देखूंगा तो हम्म। फिर मैं वो अद्वैत की दृष्टि वाले से कहूंगा कि ये तो चलो जो चल रहा है ये तो मतलब वो इसको मतलब कोई दो है ही नहीं, इसमें कौन मारने वाला और कौन मरने वाला। भगवान ने एग्जैक्टली। दूसरे अध्याय में ही कह दिया था कि ये सब तो पहले ही मरे हुए हैं, उनको तुम और इसको कौन मार सकता है। दोनों चीजें कही थी उन्होंने या कि तुमको अभी तुमको लगता है कि तुम इसको मारोगे, लेकिन वो कहता है मैं तो इनको पहले ही मार चुका हूँ। एंड देन बराबर। ऑल्सो सेज ये मरने वाला ही नहीं है कोई। हम्म। तो इट डिपेंड्स कि हम अगर मेरा इंडिविजुअल लेवल पे आइडेंटिफिकेशन है जैसे आपने भी कहा, हम्म। और मेरा क्वेश्चन भी वही है कि ये लोग क्यों सफर कर रहे हैं। अगर लोग सफर कर रहे हैं तो कर्म है, और करेक्ट। आत्मा कभी सफर करती नहीं। तो ये अशोक भाई, हमने आगे जो बात की है निश्चय नय और व्यवहार नय की बात है। हम्म। निश्चय में आप खुद परमात्मा हो, मरने का सवाल ही नहीं हो रहा है। हम्म। जब मैं आप कहता हूं तो वो वेदर ईरानियन है, इजरायली है, अमेरिकन है, जो भी मर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे अमेरिकन बेस पर इन्होंने बॉम्ब डाले हैं, तो कुछ तो अमेरिकन भी मरे होंगे। मगर कोई मरता ही नहीं है, वो अद्वैतवादी निश्चय न्याय की बात हुई।
व्यवहार नए में सब कुछ होता है, और व्यवहार नए में क्या हो रहा है उसको जस्टिफाई करने की अपनी कोई ताकत नहीं है। वहां तो हरी इच्छा करके छोड़ देना पड़ेगा। यस दिनकर भाई, बराबर। કઈ વાંધો નહીં. આ પેલા ડ્રામા તરીકે જોઈએ તો हाँ। ટ્રમ્પ એ બગડેલો ભ્રમ છે. બીજું શું છે? બરાબર છે. વંઠી ગયેલો ભ્રમ છે. હા, ભટકી ગયેલો છે. ના આમાં ખાલી એક જ વસ્તુ એડ કરીશ કે સપોઝ વેન આઈ સી ટ્રમ્પ કે એ ભટકી ગયેલો છે કે વોટ એવર હી ઇઝ, વોટ એવર ટર્મ મે બી યુઝ ફોર ટ્રમ્પ, ઇઝરાયલ ઓર ઈરાન, then I am also part of the drama. Yes, of course. નેચરલી I am નેચરલી part of યસ. the drama. So True, when I true. take myself out of the drama, Hmm. then I see nothing is happening. It's not If that you failure feel is the going. pain, you are Yeah. part of the drama. I see the Yes, pain till exactly. It's a correct definition or हाँ. नहीं principle. नहीं तो बराबर. दृष्टा बन के देखो क्या हो रहा है. थिएटर में बैठे हो, स्क्रीन के ऊपर हाँ, नाटक चल रहा है। बस स्क्रीन पे आ रहा है एक एक सीन. बट इट इज नॉट दैट इजी. Yeah, नॉट दैट no, इजी. not no. that easy, but naturally we as an individual will always empathize कि what is happening is not correct. And जैसे हमने कहा कि हम Yes, प्रार्थना कर सकते हैं, वो हम एक्चुअली जरूर करेक्ट वो हम जरूर करेक्ट कर करेक्ट. सकते हैं. Yes. बराबर. बराबर. Okay, now shall we go to the, sorry, before we go to Gita proper, anybody wants to make any comment? नहीं. ओके, तो अभी मैं 23वां श्लोक, 23rd श्लोक, 5th चैप्टर, और ये रामसुख दास जी का एक स्पेशल गिफ्ट है अपने लिए, क्योंकि वो श्लोक के पहले, श्लोक के बाद में कमेंट्री अपनी करते हैं। जो कमेंट्री मैंने गीता की और कोई भी ट्रांसलेशन, कोई भी कमेंट्री में पढ़ी नहीं है। यहाँ 23वां श्लोक, अगर आपके पास राम सुखदास जी की ये पुस्तक अगर खुली है तो देखिए, उसमें कहते हैं संबंध, मतलब आगे के श्लोक के साथ में क्या रिलेशनशिप है, क्या कनेक्शन है, वो हर एक जगह देते हैं। यहाँ कहते हैं कि अगले श्लोक में भगवान ने कहा है कि संयोग जन्य सुख भोगवाती। संयोग जन्य मतलब इंद्रिय और विषय, मेरी आंख है, कान है, नाक है, ये सब मेरी इंद्रिय है। और विषय क्या है, मैं कुछ मुझे पसंद आवे वैसा मैं देख रहा हूँ, कुछ खा रहा हूँ, कुछ सूंघ रहा हूँ, तो ये विषय हुआ। तो जो विषय और इंद्रिय के मिलने से जो सुख होता है वो हमेशा टेम्पररी होता है, और वो सुख पूरा होएगा ही, उसमें कोई शंका नहीं है। अगर मैं मेरे सगे संबंधी के ऊपर प्रेम करता हूं तो उसका मतलब कि अगर मुझे मेरी वाइफ मिली, मेरा बेटा मिला, तो मुझे अच्छा लगता है। मगर सब मरने वाले हैं, मैं भी मरूंगा तभी दूसरों को दुख लगेगा। मेरे सगे एक्सपायर हो गए, मुझे दुख लगा। ये संयोग से जो भी सुख उत्पन्न होता है वो सुख टेम्पररी है, वो जाने वाला है, और जब वो जाएगा तभी दुख होगा। कभी उससे पहले भी हो सकता है। तो ये हमने 22nd श्लोक जो पहले डिस्कस कर लिया था उसमें बताया था। तो अगर संयोग से सुख मिले वो हमेशा दुख का कारण है, तो सुखी कौन होता है? ये अभी राम सुखदास जी, ऑफ कोर्स गीता का आधार लेके कृष्ण भगवान कहते हैं, और राम सुखदास जी अपने को समझाते हैं। हम्म। तो 23वां श्लोक में कहते हैं कि जो साधक अपने मृत्यु के पहले ही काम और क्रोध के ऊपर हो जावे, उससे अलग हो जावे, वो आदमी सुखी है। आदमी मतलब मैं ये बोलता हूँ अपना स्त्री पुरुष ऐसी बात नहीं है। जो भी व्यक्ति है, व्यक्ति इज ए न्यूट्रल वर्ड। जो भी व्यक्ति, काम मतलब कामना मतलब की इच्छा, मुझे ये खाने की इच्छा हुई तो ये मेरी कामना हुई, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए वो मेरी कामना है। ये कामना से मिलने वाला सुख हमेशा जाने वाला है। ये जो इंसान उससे मुक्त हो गया, अब मेरी कोई कामना ही नहीं है, हाँ, और अभी मुझे कोई क्रोध होता ही नहीं है, तो वो सुखी हो गया। और अपने धर्मों में मतलब
हिंदू जैन बौद्ध तीनों धर्मों में इसी के लिए साधु को कोई कामना नहीं होती है। वो सफेद वस्त्र या पीला जो भी उनके धर्म में होगा, वो सिंपल कपड़ा पहन के घूमते हैं। और उसके सिवा उनको खाने की भी इच्छा नहीं होती है। खाना मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। किसी भी तरह की कामना नहीं है। खाली धर्म चर्चा, धर्म का अभ्यास वो करते रहते हैं और कुछ नहीं। वो महासुखी है। जब हम छोटे थे तभी बात करते थे, अरे फला आदमी ने दीक्षा ले ली, अभी वो उसके पास कुछ नहीं है। और अभी भी हम तो पिछले 10 साल में ऐसे 2-3 लोगों की बात सुनी कि जो करोड़पति थे। अहमदाबाद में भी एक आदमी था, बहुत ही बड़ा बिलियनर, सब छोड़ के दीक्षा ले ली। तो ये श्लोक में या तो ये 5वां चैप्टर में उसका जवाब है कि जितना करोड़ों रुपया होवे, गाड़ी बंगला मकान जो भी होवे, वो सब विषय है। वो विषय से मिलने वाला सुख तो जाने ही वाला है। मगर जब वो अपने आप को परमात्मा के साथ में संबंध जोड़ता है, तभी उसे अत्यंत सुख मिलता है। ये 3-4 बार आगे रिपीट होगा। अच्छा, और इसमें पाછી वापस एक शर्त है कि परमात्मा से जुड़ने का मतलब ये है कि अभी आपको इंद्रिय जन्य सुख की कामना नहीं है। मतलब आपको विषय सुख की कोई इच्छा नहीं है। हम विषय सुख हमेशा सेक्स के साथ में ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं। मगर विषय सुख होवे या खाने का या संगीत सुनने का या फिल्म देखी मुझे आनंद आया, कोई भी चीज है, वो सब संसारी चीज है। और संसारी सुख हमेशा हमें छोड़ के जाएगा। अभी ये गीता इज द मोस्ट पैराडॉक्सिकल बुक। यहाँ भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तू अपनी कामना छोड़ दे। अरे वो तो कामना छोड़ के साधु बनने को तैयार था, उसको युद्ध ही कहाँ करना था। हाँ, वो तो गीता शुरू होती है उसके पहले कहता है, अरे मैं तो ये धनुष बाण रख दिया, मुझे युद्ध करना ही नहीं है। तब भगवान उसे कहते हैं, नहीं नहीं, तेरे को तेरा कर्म तो करना ही है। कर्म कर, मगर परिणाम की अपेक्षा न रख। क्योंकि हम गृहस्थ है। ये ऐसा कहा कि भाई हमें विषय सुख नहीं चाहिए, खाली ज्ञान का सुख चाहिए। तो क्या हम अपनी सीए की प्रैक्टिस, मेरे ख्याल से यहाँ सब सीए है एक्सेप्ट नितिन। અને વીટી मीन्स हु, वसुधा जी? Yes, Vasudha. हाँ हाँ, ओके। तो हाँ वसुधा जी, यू आर ऑल्सो सीए राइट? नो, यू आर ए No, डॉक्टर। I'm not. I'm an MBA. एमबीए, ओके ओके। Okay. हाँ, Yeah. तो भगवान एक बाजू युद्ध करने की आज्ञा देते हैं और दूसरी तरह से बोलते हैं कि तू परिणाम की अपेक्षा नहीं रख। मान लो तू जीत गया, तुझे राजगादी मिलेगी, तुझे सुख मिलेगा, ये सब भ्रम है। क्योंकि तुम्हें सुख तो कोई दे ही नहीं सकता है। सुख तो आत्मा, आत्मा खुद सुख है। उसका स्वभाव, उसका रूप सुख का ही है। तो ये राम सुखदास जी, मैं अभी 380, 380 पेज पर हूँ। हाँ, कि विवेक रखो, राग द्वेष काम क्रोध ये सब छोड़ दो। और तुम्हें मनुष्य शरीर मिला क्यों है? बहुत सारे जीव, वो प्राणी होते हैं, पक्षी होते हैं, जंतु होते हैं। हाँ, तो वो सभी जन्मों में उन्हें मोक्ष की कोई शक्यता नहीं है, ऐसा ये धर्म कहता है। और दूसरे लोगों की मान्यता अलग भी हो सकती है। मगर हिंदू धर्म कहता है, अपने तीनों धर्म इंडिया के धर्म कहते हैं कि मानव देह मिलेगा, उसके बाद में भी वो इंसान मोक्ष के लिए प्रयत्न करेगा, तभी उसे मोक्ष मिलेगा। बाकी कोई भेड़ बकरी है, वाघ है, सिंह है, उसे मोक्ष नहीं मिल सकता है। तो मनुष्य शरीर ही मिला है मोक्ष प्राप्ति के लिए। अच्छा, मतलब फिर से यही बात कर रहे हैं कि काम क्रोध के वेग उसको सहन नहीं कर सकते हो। अभी इसका एक सिंपल इलस्ट्रेशन है
कि समझो मेरी ऑफिस में एक एम्प्लॉय ने कुछ गलत काम किया, मेरी व्याख्या से वो गलत है, उसकी व्याख्या से गलत नहीं भी हो सकता है, या तो भूल से हो गया। अभी वही समय अगर मैंने मेरे दिमाग को कंट्रोल कर लिया और उसे माफ कर दिया, तो मैं पाप कृत्य से बच गया। अगर मुझे क्रोध आया तो फिर क्रोध के वेग को सहन करना बहुत मुश्किल है। क्रोध आने के बाद में तो इंसान कुछ भी कर बैठता है। क्रोध आवे उसके पहले कंट्रोल करके क्रोध को दूर से ही भगा देवे, ये सलाह यहाँ भगवान ने अर्जुन को दी है। एक बार राम सुखदास जी 380वें पेज में लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम में कहते हैं कि एक बार आपकी कोई क्रिया शुरू हो गई तो उसके बाद में उसे कंट्रोल करना मुश्किल है, या तो नामुमकिन है। तो क्रिया शुरू होवे उसके पहले ही अपने आप को कंट्रोल करो। और जो व्यक्ति अपने काम और क्रोध, काम मतलब कोई भी इच्छा होती है वो, और क्रोध, इसको जो कंट्रोल में ला सके उसे योगी कहते हैं। अभी 24th श्लोक। हाँ, जिसको सिर्फ परमात्मा में आनंद मिलता है और जो सिर्फ परमात्मा की ही कामना रखता है, वो आदमी योगी है और वो निर्वाण पामता है, मतलब मोक्ष पाम सकता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अभी ये भी आगे कमेंट्री में आएगा कि मोक्ष तो नित्य प्राप्त है। आप खुद ब्रह्म हो। अभी मोक्ष प्राप्त करना मतलब कि आपको वापस ब्रह्म बनना है, तो इसके लिए कहते हैं प्राप्तस्य प्राप्ति। जो आपके पास ऑलरेडी है उसे प्राप्त करने के ये सब प्रयत्न है। जो इंसान को सिर्फ परमात्मा दिखते हैं, वो परमात्मा में ही उसका फोकस है और परमात्मा में सुख मान के उसी के लिए प्रयत्न करता है, वो आदमी ब्रह्म को पा सकता है, मतलब वो ही आदमी मोक्ष पा सकता है। अभी 382 पेज पर राम सुखदास जी कहते हैं कि अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि निवृत्ति करके सबसे जुदा होकर आप सांख्य योग की साधना कर सकते हो। सांख्य योग मतलब ज्ञान योग, उसमें फक्त ज्ञान का महत्व है। अभी आगे मतलब 25वां श्लोक में प्रवृत्ति से ज्ञान प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। से मतलब ये हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा चार्म है। वो बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस भी उसमें आते हैं, फिर वो कॉन्ट्राडिक्शन हकीकत में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, वो भी समझाते हैं कि आप संन्यास लेके, मतलब निवृत्ति लेके मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, या तो गृहस्थाश्रम में रह के प्रवृत्ति करके भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। ये 25वां श्लोक में कहते हैं जिसका शरीर मन इंद्रिय सभी कुछ उसके वश में है, मतलब उसके कंट्रोल में है। और मुझे जो सबसे अच्छी लाइन लग रही है, सर्वहिते रताः, मतलब वो इंसान के दिमाग में सभी का भला करने की ही इच्छा है। उसे और कोई इच्छा ही नहीं है। तो सभी का हित करना वो ही परमात्मा की तरफ फोकस करने के बराबर ही है। दोनों चीज बराबर है। और जिसका सभी पाप का नाश हो गया है, कलमश शब्द यूज किया है। हाँ, वो कलमश उसका क्षीण हो गया, मतलब पाप से वो मुक्त हो गया है। ऐसी व्यक्ति को मोक्ष मिल सकता है। और इसके लिए लैंग्वेज उन्होंने यूज किया है
कि ऐसी व्यक्ति अपने आप को परमात्मा से अभिन्न समझता है। अभिन्न मतलब कि अर्जुन और कृष्ण भगवान दोनों के बीच में फर्क ही नहीं रहा। कृष्ण भगवान है, अर्जुन साधक है। वो साधक अपनी जो ऑब्लिगेशन आया, अपना जो कर्तव्य आया, वो कर्तव्य करता रहे और किसी चीज में की कामना न रखे। उसको राज्य की भी कामना नहीं है, जीतने भी की कामना नहीं है, मगर कौरवों ने पाप किया है, वो कौरवों को सजा देने का उसका कर्तव्य है। वो अपना कर्तव्य करते रहे, तो वो भगवान से अपने आप को अभिन्न समझ के, उसका मतलब यही हुआ, वो खुद भगवान हो गया उसकी समझ के, या तो उसका मोक्ष हो गया। अभी 383 पेज में दो तीन शब्द अच्छे हैं। छिन्न द्वैधा, उसको कोई अभी द्विधा नहीं है, कोई शंका नहीं है, उसका मगर क्लियर है कि मुझे यही करना है और कुछ मेरा कर्तव्य नहीं है। ऋषयः, हम लोग ऋषि शब्द को बहुत बार उपयोग किया है, मगर ऋषि शब्द का सही अर्थ क्या है तो यहाँ बता रहे हैं। और ये साधु जी की अपने ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि अगर ये कमेंट्री नहीं, मैंने दूसरी बहुत सारी कमेंट्री पढ़ी है, मगर यहाँ जो एक एक शब्द के अर्थ दिए हैं, कलमस मतलब पाप, हाँ, और ऋषि, ऋषि का मतलब क्या, तो यहाँ समझाते हैं कि रुस शब्द का अर्थ है ज्ञान, जिसे अभी सिर्फ ज्ञान की इच्छा है, ज्ञान के सिवा उसे और कोई इच्छा नहीं है, ऐसा इंसान मोक्ष प्राप्त कर सकता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम। हाँ, वसुधा जी, आपको हिंदी या इंग्लिश कमेंट्री मिली, राम सुखदास जी की कमेंट्री हाँ, मिली है। मिली है? अच्छा, हाँ। बहुत अच्छा, ठीक है। आप पढ़ हाँ। रही है? लास्ट एक क्लास का होमवर्क नहीं किया है। आई एम रियली वेरी सॉरी। नो नो, डोंट बी सॉरी, नो इट्स ओके। नहीं, मगर मैं जरूर आपसे कहूंगा कि बहुत ही सुंदर, एक तो गीता एक महान, इसको मोक्ष शास्त्र ही कहते हैं, तो हाँ। मोक्ष शास्त्र से ऊपर तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। और उसमें राम सुखदास जी जो कमेंट्री लिखते हैं, हम्म। वो इतनी सुंदर कमेंट्री लिख रहे हैं कि अपने को गीता पूरी समझ में आ जावे। हाँ, आ- मेरे पास वो हाँ। अब्रिज्ड एडिशन है। ओ, ओके ओके, नहीं ये नहीं, हाँ एवरेज छोड़ दो, आप हाँ, कंप्लीट एडिशन पढ़िए। नहीं, अगर ठीक है। वहां आपको नहीं मिल रही है तो मैं यहाँ से खरीद के आपको भेजूंगा। नहीं, मैं कोशिश करूंगी देखने के लिए। आप कौन सी लैंग्वेज पढ़ सकती हो? मैं हिंदी और इंग्लिश। हाँ, तो हिंदी में तो जरूर मिल जाएगी। ओके। शायद इंग्लिश में भी मिलेगी, मगर मतलब यहाँ तो ये जो पुस्तक है अपने अ, गीता प्रेस गोरखपुर वाले, तो हम्म। हाँ, वो गोरखपुर वाली जो गीता प्रेस है, वो दुनिया में बहुत जगह पे है। शायद हाँ, कनाडा में नहीं होगा तो अमेरिका में भी होगा। नहीं और होगा। वैसे होगा, मैंने हाँ, ध्यान से नहीं देखा। ओके ओके, नो नो पर- प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ। हाँ, मतलब यहाँ बम्बई में तो मिलती है, अहमदाबाद में भी मिलती है। आ, हम्म। आप प्रयत्न कीजिए, क्योंकि ये बहुत ओके बढ़िया है पुस्तक। ओके ओके ओके। अश्विन भाई ऑनलाइन भी है। ओके ओके। ऑनलाइन ही देखना पड़ेगा मुझे। देख। हाँ हाँ। ऑनलाइन है। हाँ, हम्म। नहीं बराबर से, अभय भाई इज राइट। गीता प्रेस की पुस्तक आप ऑनलाइन से ऑर्डर भी कर सकेंगे, जी और जी हाँ, वो मिल जाएगी आपको। जी जी। मतलब ये गोरखपुर मतलब यूपी में है, और हम्म। यूपी से आपको कुरियर चार्ज भरना पड़ेगा, मगर आपको मिल जाएगी। हाँ, मिल जाएगा। मैंने देखा नहीं वो। हाँ। एक्चुअली वो छोटी जो किताब है वो पढ़ने के लिए ही मुझे टाइम निकालना पड़ रहा है, तो इसलिए नहीं लिया है। अभी देखूंगी जरूर। कोई बात नहीं, आप प्रयत्न कीजिए। ठीक है। हाँ, तो ठीक। रूस, रूस शब्द का अर्थ ज्ञान है। ऋषि मतलब जिसको ज्ञान की इच्छा है, ज्ञान की ही कामना है, और किसी तरह के सुख की कामना नहीं है। और ज्ञान मतलब क्या,
इनकम टैक्स का नॉलेज करने से ऋषि नहीं बन जाओगे। वो तो जिसे आत्मा का आध्यात्मिक ज्ञान की ही इच्छा है वो ऋषि है। और ऐसे ऋषि को, मतलब जो ज्ञान की कामना करके ज्ञान के पीछे पड़े हैं, उससे क्या मिलता है? उससे ब्रह्म निर्वाण, मोक्ष के लिए यहाँ उन्होंने शब्द ब्रह्म निर्वाण यूज किया है। निर्वाण शब्द बुद्धि मतलब बुद्धिस्ट रिलीजन में भी निर्वाण शब्द यूज करते हैं। हिंदू धर्म में हम मोक्ष कहते हैं। वो निर्वाण से जो सुख मिलेगा वो आत्यंतिक सुख है। सुख के सिवा कुछ भी नहीं है। और वो सुख की कंपैरिजन और कोई भी सुख से नहीं हो सकती है। और इसके लिए तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है कि पूरी पृथ्वी पर जितने भी जीव है, वो सभी जीवों की जो भी कामना है वो सब कामना पूरी हो जावे, तभी जितना सुख होगा वो सुख को आप एक यूनिट गिनो। फिर वो एक यूनिट से कितना मल्टीप्लिकेशन करोगे, मतलब इन्फिनाइट मल्टीप्लिकेशन करोगे, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। और मोक्ष मिलेगा उसके बाद में तो आनंद ही आनंद है। और मोक्ष का मतलब एक और भी यहाँ कह रहे हैं कि अपने आप को ब्रह्म के साथ में एकत्व, और पूरी दुनिया में जो भी है वो भी सब ब्रह्म ही है। ये ऐसी भावना जब होती है, मतलब फिर तो कोई अ, एक सेकंड ना, आई हैव टू कीप ट्राइंग बिकॉज देन आई गेट ए मैसेज के somebody इज वेटिंग, ही वांट्स टू कम। आप लोगों को ये मैसेज आता है क्या? somebody wants to join, हाँ, प्रमोद जैन। सुन भाई एडमिन ने जा रहा है जेमने और सर अपने हाँ ओके, वो सर हाँ आपको ही हाँ, आएगा, हाँ मतलब एज अ होस्ट। बराबर से। So I got a message that Mr. Pramod Jain wants to join, but I can't see where is his, how to admit him. रश्मि भाई नमस्कार। हाँ, मैंने मैंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है कर एक्चुअली। लिया है ना? यस ओके यस, ओके, थैंक यू रश्मि भाई, सॉरी फॉर वेलकम। ज्वाइनिंग लेट एक्चुअली। No, no, I will take penalty from you. बिल्कुल बिल्कुल, The छोड़िए penalty will बिल्कुल। be, the next discussion will be led by you. अरे अरे ओके। अब यहाँ राम सुखदास जी लभंते शब्द का एक अपनी तरफ से ही एक अर्थ बता रहे हैं। लभंते मतलब क्या, या तो मोक्ष मिल जाना मतलब क्या? तो कहते हैं समुद्र में जब लहरें हम देखते हैं, हमें हर एक लहर अलग अलग दिखती है, मगर वो लहर जब समुद्र में समा जाती है तो क्या होता है? फिर एक समुद्र ही रहता है, कोई लहर नहीं। और समुद्र और लहर दोनों जल है, वाटर है, पानी है। तो पानी में कोई फर्क है ही नहीं। वो तो पानी ही है, उसमें कब फर्क था नहीं, कभी है नहीं, कभी होगा भी नहीं। मगर एक मान लिया हुआ फर्क टेम्पररी रहता है। इसी तरह से आप और मैं अभी इसी वक्त ब्रह्म ही है। ब्रह्म और इंसान, ब्रह्म और शेर, ब्रह्म और पक्षी, कोई फर्क है ही नहीं। मगर जो हमें फर्क दिखता है वो दिखता है, उसके कारण हम सुख और दुख का अनुभव कर रहे हैं। वो जब हमारी किसी तरह की कामना नहीं रहेगी, हम काम और क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे, तो उसके बाद में हम ब्रह्म ही बन गए। जैसे समुद्र और लहर में कोई भेद नहीं है, इसी तरह से आप और ब्रह्म, ब्रह्म मतलब एक हमें ध्यान रखना है कि हिंदू धर्म के हिसाब से ब्रह्म मतलब सभी ईश्वरों से भी ऊपर। उसमें सब ईश्वर समा जाते हैं, इसे ही
ब्रह्म कहते हैं। अभी इसमें जो परिशिष्ट भाव कहते हैं लोगों को लगता है कि ये योगी सभी लोगों के हित में ही तत्पर है। ही हैज a keen desire to help everybody, but he is not really doing anything. वो अपने आप ही होता है। जैसे समुद्र में लहर आती है तो उसके लिए समुद्र को प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, इसी तरह से एक जो सर्वहिते रता ऐसा आदमी है जिसे योगी कहा है उन्होंने। और इसके लिए योगी मतलब ये नहीं कि वो संसार को छोड़ के कुटुंब को छोड़ के जंगल में जाके बैठ जावे, इसको योगी नहीं कहते हैं। यहाँ कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो सभी के हित में तत्पर है, सभी के हित में ही सुखी है, और जिसके ज्ञान के सिवा और कोई चीज की इच्छा नहीं है, वो आदमी ब्रह्म प्राप्त कर सकता है। मतलब कि वो ब्रह्म में मिल ही जाता है। जैसे समुद्र की लहर समुद्र में मिल जाती है, ऐसे ये योगी ईश्वर में मिल जाता है। अच्छा, फिर आगे कमेंट है 24 और 25 श्लोक में भगवान ने सांख्य योग के साधक के द्वारा निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त करने की बात कही। अभी आगे का श्लोक मतलब 26वां श्लोक में बता रहे हैं कि जिसे निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो गई उसे क्या अनुभव होता है। ये बहुत महत्व की बात है, क्योंकि हम कहें कि मुझे ये प्राप्त करना है वो प्राप्त करना है, मगर प्राप्त करने के बाद में क्या होता है, तो ये अभी आ रहा है 26वां श्लोक में। इनका जो ट्रांसलेशन है वही कहते हैं कि जो काम और क्रोध से ऊपर हो गए, जिसे कोई इच्छा अभी नहीं रही, उसे अपना स्वरूप का साक्षात्कार हो गया। स्वरूप शब्द हम जब यूज करते हैं कॉमन लैंग्वेज में तो स्वरूपवान मतलब सुंदर, ऐसा हम अर्थ लेते हैं। मगर स्वरूप मतलब अपना खुद का रूप, ये उसका करेक्ट मीनिंग है। और आपका खुद का रूप तो आप आत्मा हो, और आत्मा ही परमात्मा है। तो आप अभी इसी वक्त परमात्मा हो, ऐसी जब अपनी समझ अपने दिमाग में घुस जावे, मतलब स्थिर हो जावे, तभी हमें स्वरूप का पता चला। और स्वरूप का पता चला तो फिर आनंद ही आनंद है, कोई दुख है ही नहीं। काम क्रोध से रहित जीतेले मन वाले, मन को जीतना वो अपने शास्त्रों में कहा है कि सबसे डिफिकल्ट है। हाँ, और कुछ जीत सकते हैं, जैसे सिकंदर आया, वो रास्ते में जितने देश आ गए सबके ऊपर जीतते जीतते आ गया, मगर वो मन को जीत सका क्या। वो मन को जीतना मतलब वो साधु हो जाता है, तभी वो सम्राट नहीं रहता है, कभी वो सेठ नहीं रहता है, वो स्वभाव से साधु हो जाता है। फिर भले उसने शादी की होगी, उसका कुटुंब होगा, वो अपना कामकाज करते रहेगा, मगर जैसे भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी थी कि तू तेरा युद्ध कर, मगर कैसे, कोई भी कामना के बगैर और क्रोध के बगैर। तुझे दुर्योधन के ऊपर भी क्रोध नहीं करना है, दुशासन के ऊपर भी क्रोध नहीं करना है, किसी के ऊपर क्रोध किए बगैर उसको मार डाल। तो ये इतनी कॉम्प्लेक्स स्टोरी है गीता की। जिसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया है उसके लिए चारों बाजू संसार में सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म है। उसके लिए ना कोई दुश्मन है, ना कोई मित्र है, ना कोई पिता है, ना कोई पुत्र है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। और इसी के लिए फिर वापस यहाँ कहते हैं हम अपने धर्म में कि संसार एक नाटक है, एक दिखावा है। आपको अपना कर्तव्य करना है, न क्रोध करना है, न दुखी होना है। और बाकी संसार में जो भी है उसके लिए ये शब्द है उत्पत्ति और विनाशशील।
जिसका जन्म होता है, जिसका मृत्यु होता है, वो सभी चीज असत है। असत मतलब वो है ही नहीं, वो सत्य ही नहीं है, असत्य है। असत्य का अर्थ हम लोग अपनी कॉमन लैंग्वेज में झूठ बोलते हैं, मगर हिंदू धर्म के हिसाब से झूठ नहीं। असत मतलब कि जिसका अस्तित्व ही नहीं है, सिर्फ नाटक हो रहा है। और अगर हमें ये प्राकृतिक चीजों की इच्छा हुई, जो जिसका जन्म होता है, जिसका मृत्यु होता है, वो सब प्राकृतिक है, मतलब प्रकृति की है, प्रकृति की बनी हुई चीजें हैं। वो सभी चीजों में आपको स्थायी आनंद, परमानेंट ब्लिस तो कभी मिलेगी नहीं। और जो आदमी अगर साधना में, समझो एक समय में मैं क्रोधी था, मेरी इच्छा के बराबर कोई छोटी सी चीज नहीं हुई तो मुझे क्रोध आ जाता था। धर्म का अभ्यास करने से ये पहला फायदा है, पहला बेनिफिट है कि आपका क्रोध कम हो जाता है। दूसरे ने आपकी इच्छा के बराबर किया या विरुद्ध किया, आपने जो चाहा था वो मिला या ना मिला, वो सब कोई चीजों के महत्व ही नहीं रहता है, क्योंकि ये सब चीज असत है। जिसका मिलने के बाद में विरह होना ही होना है, जो आपके साथ कायम नहीं रहने वाला है, उसका दुख क्यों करने का। अभी ये सब बोलने के लिए अच्छा लगता है, मगर प्रैक्टिस में कितना लोग कर सकते हैं। और एक बार अजय, अगर मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे ऑफिस चाहिए, मुझे फैमिली चाहिए, अगर वो सब चला गया तो साधु लोग वो कुदरती चले जावे उसके पहले खुद त्याग कर देते हैं। जिन्होंने त्याग कर दिया तो फिर उसको दुख होने का कोई चांस ही नहीं है, और फिर वो सिर्फ ज्ञान के पीछे पड़े हैं। अरे यहाँ ऑन 384 पेज राम सुखदास जी कहते हैं कि अगर आप ये धार्मिक साधना में लग गए तो उसके बाद में आप देखोगे कि आपको क्रोध कम आएगा, क्रोध जल्दी से आएगा नहीं ना, ऐसे सब बेनिफिट तो ऑटोमेटिक होते जाएंगे। और इसके लिए कहते भी हैं कि अगर कोई सभा में आप गए, कोई साधु का प्रवचन सुन रहे हैं, और कुछ चीज ऐसी हो गई जो साधु को पसंद नहीं है, और साधु अगर गुस्सा हो गए, तो समझ लेने का कि वो साधु अब तक पूरे साधु नहीं बने हैं, वो अभी भी गृहस्थ जैसे ही व्यवहार कर रहे हैं। कितना लिया था तुम डैश कितना किया ले 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 यार टोटल 99 किया 99 हाँ सिक्का जी। हाँ जी हाँ, आप अपना कंप्यूटर म्यूट कर दीजिए। एक बार अच्छा, ये 27 और 28वां श्लोक में अब तक जो बात की वो ही फिर से रिपीट होती है। कहते हैं कि जो साधु है, मतलब जो मुनि है, मुनि कौन है, जो आगे हमने सब डिस्क्रिप्शन सुना, वो ऐसे साधु तो हमेशा मुक्त ही है। उन्होंने अपनी इंद्रिय मन बुद्धि सबको जीत लिया है। अभी उनके कोई मन नहीं होता है मुझे चलो अभी ये देखना है, ये खाना है, ये बातें करनी है, या तो वो फला चीज प्राप्त करनी है, ऐसा मन होता ही नहीं है। मन और बुद्धि दोनों के ऊपर जीत लिया है, क्योंकि बुद्धि भी एक से ट्विस्टेड थिंग। अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान मानने वाले लोग सबसे ज्यादा भूल करके बैठते हैं ना। तो क्योंकि आध्यात्मिक बात में बुद्धि की खास जरूरत नहीं, हृदय की जरूरत है। हृदय उसमें लगा दिया तो फिर ये क्रोध वगैरह होना चांस कम है। तो अभी पहली बार यहाँ कृष्ण भगवान कहते हैं कैसे योग करना। तो कहते हैं कि अपनी दोनों आंख के ऊपर जो भ्रमर है, वो दोनों भ्रमर के बीच में फोकस करो। हम्म, और आप प्रयत्न करके देखो तो कुछ दिखेगा ही नहीं।
दोनों भ्रमर के बीच में अगर फोकस करने को जाएंगे तो भ्रमर तो अपने को दिख नहीं सकती है, और फिर सामने का भी दिखने का बंद हो जाएगा। तो ये करने से अपना फोकस, आध्यात्मिक फोकस हो जाएगा, और दूसरी चीजें अपने और दिखेगी नहीं। ये भी एक महाभारत में वार्ता है, युधिष्ठिर और यक्ष का सवाल जवाब। तो वहाँ यक्ष पूछते हैं और युधिष्ठिर कहते हैं, अपनी पांचों इंद्रियों में सबसे ज्यादा ताकत वाली तो दृष्टि है, कि जो चीज में अपनी दृष्टि पड़ी उसमें अपना रस उत्पन्न होता है, फिर उसे देखते रहते हैं, फिर अपना मूल काम भूल जाते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। अगर दृष्टि को ही कंट्रोल कर लिया तो वो पहली इंद्रिय कंट्रोल हुई। उसके बाद में धीरे धीरे आप सभी इंद्रिय को कंट्रोल करो और ध्यान अपना ज्ञान के बीच में ज्ञान के ऊपर लगाओ। और ये भी योग की दूसरी कड़ी है कि जो हम प्राण और अपान ऐसे शब्द यहाँ यूज किए हैं। प्राण मतलब कि जो हम सांस लेते हैं, अपान मतलब हाँ, प्राण मतलब जो सांस हम अंदर लेते हैं, अपान मतलब जो सांस हम बाहर निकालते हैं। वो दोनों को समान करो, आंख को फोकस करो। ये करने के बाद में आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, और उसके बाद में आप इधर वो कहते हैं कि परमात्मा में आपका ध्यान रहेगा, या तो ज्ञान में ही आपका ध्यान रहेगा। तभी आप आगे ब्रह्मानंद प्राप्त कर सकते हो। Now, I will pause here for a minute. Anybody wants to make any comment? चार पांच लोग हो गए हैं और सब बड़े बड़े हैं, तो આમાં પ્રાણપાનો જે આગળ વાત છે એમાં સારી ડિટેલ આપી છે. પ્રાણપાનો સમકૃત્વા નાસાદ વ્યંતર એટલે કેવી રીતે તમે ફોકસ हाँ કરી શકો हाँ हाँ, એમાં ડિટેલ સારી આપી છે. बराबर से। नाक से बाहर निकलने वाले, सॉरी मैंने उल्टा कहा शायद, नाक से बाहर निकलने वाले वायु को प्राण बोलते हैं, और नाक के अंदर जाने वाले वायु को अपान बोलते हैं। और ये प्राण और अपान दोनों सम हो गए, मतलब समान हो गए। उसको वो कैसे करने का वो भी बताया है। और जब मैंने योगा के क्लास भरे थे, तो योग में भी ऐसा ही समझाते हैं, पहले एक नाक से सांस लो, दूसरे नाक से निकालो, फिर उसका रिवर्स करो वगैरह, योगिक क्रियाएं आती है। રશ્મિન, આ हाँ પેજ નંબર 387, આ हाँ શ્લોકના પરિશિષ્ટનું જે છે, हाँ પરિશિષ્ટ ભાવ, हाँ યોર કોમેન્ટ ઓન ધીસ. પોતાને શરીરથી અલગ કરી દેવો કે હું શરીર નથી, શરીર મારું નથી यस અને તે મારા માટે નથી. આ ત્રણેય વાતો દરેક સાધકે માનવી જ પડશે, ભલે તે કોઈ પણ યોગ માર્ગે કેમ ન જાય. શરીર સાથે પોતાને કોઈ સંબંધ ન માને તો મુક્તિ સ્વતઃ સિદ્ધ છે. હાઉ ઇટ ઇઝ પોસિબલ? For us it is not possible. અશોકભાઈ, વોટ ઇઝ યોર કોમેન્ટ? સર am I audible? Because I have problem जरा with my जरा ट्राई करो अवाज વધારે કરવાની. try to करे, but because I have some problem here. Okay, there is okay. so much. Then please go ahead. But We can still hear it. હા, સો જ્યારે રશ્મિનભાઈ તમે કહેતા હતા કે એને એક્સપ્લેન કરતા હતા કે we should not get angry, we should not have desires, मतलब sense driven desires. The first question જે દિનકર સાહેબે જે પહેલા ક્વેશ્ચન કર્યું એના પહેલા the first question is કે સપોઝ હું ઓફિસ જઉં છું, ઓફિસ જવા માટે મને ગાડીની જરૂર છે, મારે ગાડી નહીં લેવી જોઈએ? ઇઝ ઇટ એન ઓબ્સ્ટ્રક્શન? બીકોઝ આપણે પ્રેક્ટિકલ વાત કરીએ કે ભગવદ ગીતા આપણે પ્રેક્ટિકલી કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ. સો મારે આ ગાડી નહીં લેવી જોઈએ, અને ટેક ફોર એક્ઝામ્પલ મારા ઓફિસમાં એસી ની જરૂર છે, તો પેલું તપસ માટે મારે એસી નહીં ચલાવવું જોઈએ. જસ્ટ ધીસ બેઝિક થિંગ્સ. તો
how everybody looks into this કે જ્યારે આપણે એ વાંચીએ છે અને હમ practically does it mean કે I should be avoiding all these comforts or luxury or whatever term we may for time being use it for these things. नो आई थिंक गीता's मैसेज इज वेरी क्लियर कि गृहस्थ को बहुत चीजों की जरूरत पड़ेगी, मगर वो चीज में उसका मोह नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर अर्जुन को अगर युद्ध करना है तो उसे रथ चाहिए, उसे वो धनुष्य बाण चाहिए। वो धनुष्य बाण को छोड़ के आके युद्ध में क्या करेगा? तो जो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, जो साधन की जरूरत है, वो तो लेना है और फिर उसे अपना कर्तव्य करना है। और कर्तव्य करने के बाद में भी उसे जीतने की कामना से वो कर्तव्य नहीं कर रहा है, मगर अपना कर्तव्य है इसीलिए कर रहा है। वो तो बहुत बड़ा फेमस श्लोक है। उसे जो भी चीज करनी है वो करना है, जो प्राप्त करना है वो प्राप्त करना है, मगर सबके पीछे उसके दिमाग में पता है कि मैं भी ब्रह्म हूँ, दुर्योधन भी ब्रह्म है, सभी कोई ब्रह्म है। मगर अभी आज की तारीख में मेरा ये कर्तव्य है कि मुझे युद्ध करना है, तो बस मैं कर रहा हूँ। तो आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ऑफिस की जरूरत है। अगर ये समर में इतनी गर्मी है और आप एयर कंडीशनर अफोर्ड कर सकते हो, एयर कंडीशनर चला सकते हो, तो चलाओ। जानबूझकर अपने को, अपने शरीर को कष्ट देने से कोई लाभ नहीं है। और यहाँ मेरे हिसाब से हिंदू धर्म और जैन धर्म में बड़ा तफावत आ जाता है। जैन धर्म में जो लोग 10-10, 25-25 उपवास करते हैं, मतलब 10 दिन फास्टिंग करना, वो शरीर को त्रास देने के बराबर है। एक उपवास हर एक धर्म में बताया, इवन क्रिश्चियन धर्म में फास्टिंग का एक महत्व है। ये मैं खाली इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ कि जो चीज की आपको जरूरत है, जो अशोक भाई ने सवाल किए, आपको ऑफिस की जरूरत है, आपको अपने घर से ऑफिस जाने के लिए कोई साधन तो चाहिए ही। आप चल के हर समय, अभी मेरे घर और ऑफिस के बीच में 14 किलोमीटर का अंतर है, तो वो मैं चल के तो जा नहीं सकता हूँ, ऐसा कोई कह भी नहीं रहा है। लोग कहते हैं जो साधन की जरूरत है उसका उपयोग करो, मगर उसमें मोह मत रखो। अगर मेरे पास 5 लाख की गाड़ी है, उससे भी काम हो सकता है, तो मुझे वो मर्सिडीज गाड़ी या उससे भी जब बड़ी बड़ी गाड़ी आती है उसके लिए मोह करने की कोई जरूरत नहीं है। एम आई आंसरिंग यू अशोक भाई? यस यस रश्मिन भाई, बहुत अच्छी तरह, लेकिन मैंने सोचा था कि आप आंसर नहीं देंगे, शायद आप फोरम पे रखें। That was the objective. And just to add, because you have beautifully summarized it, and हाँ just इसमें एक दो चीजें कि बस ये एक विवेक के, मैं अगर कोई गाड़ी लेता हूँ हाँ या हाँ। ये जो मैं एसी खरीद रहा हूँ जो मुझे चाहिए, बस ये हम्म समझना कि ये मुझे सुख नहीं देगा। तो हम्म ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और दूसरा दृष्टिकोण जहां पे वो समदृष्टि की बात होती है, या बहुत बार ये आता है इक्वानिमिटी की बात आती है भगवत गीता में, तो जिस दिन मैं एसी चला रहा हूं वहां तो ठीक है, हम्म लेकिन जिस दिन बहुत गर्मी है हम्म और उस दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हम्म उस दिन मेरे मन की अवस्था कैसी है, हाँ, दैट डिटरमाइंस के मतलब मैं किस तरीके से मैं तैयार हो रहा हूं इस साधना में, इस इसको, अपने हाँ, पाथ पे। समता भाव जो कहते हैं, हाँ वो अपने गीता में भी समता भाव की बहुत बार बात हुई है, और जैन धर्म में भी इसको बहुत महत्व दिया है। आपको चाहिए चीज मिल गई तो आप खुश हुए, और अगर ना मिली तो दुखी हुए या क्रोधी हुए, तो वो गलत बात है। नाउ हाँ, कमिंग अगर टू व्हाट दिनकर सर सेड कि मैं शरीर नहीं हूं, इसको कैसे जानना। तो एक्चुअली क्या, हमने दो तीन बार ऐसे एग्जाम्पल के साथ भी हमने किया ही है कि हाँ, कहीं बार मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम शरीर की तरह बिहेव करते हैं, बराबर है। बहुत बार मन के स्तर पे बिहेव करते हैं, हम्म और बहुत बार बुद्धि के स्तर पर भी हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है। तो जब हम मन की अवस्था में होते हैं तो उस वक्त हमारा शरीर हमारे साथ नहीं होता। बहुत हम्म बार होता है जब हम खुश होते हैं, या जब करेक्ट। हमको कोई काम करना होता है कि घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, हम्म तो वहां पे हमको मालूम है कि मुझे इंटेलेक्चुअली भी मुझे पता है और मेरी भावना भी जुड़ी हुई है कि घर में शादी है। हम्म तो मैं इतना काम करता हूं कि मुझे उस शरीर का भान मतलब वो पता नहीं चलता।
तो क्या वो एक एग्जाम्पल नहीं है जहां पे मैं जानता हूं कि मैं शरीर नहीं हूं? एटलीस्ट मैं बिहेव तो कर रहा हूं इंटेलेक्चुअली, शायद अभी तक नहीं समझा हूं, पर ये ऐसे होता तो है। इसी तरीके मन की अवस्था पे भी होता है। तो धीरे धीरे जब हम इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और अवेयर रहेंगे हम्म और रोज अपने आप को याद कराएंगे, या जैसे यही एग्जाम्पल कि जिस दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और एसी नहीं चल रहा है, तो मैं शरीर पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। मैं समझूंगा कि ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं हम्म उस शरीर की अवस्था से उठकर अपने मन की अवस्था पे आ चुका हूं। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल ही जो अपने प्रैक्टिस में लाएंगे, हम्म तो नेचुरली हम इसको पार करते हैं, और हम एक्चुअली सबका अनुभव होगा कि किसी न किसी समय हमने ये सबने किया है। बराबर है। हम्म अपने कपड़े को ज्यादा महत्व देते हैं, मैंने कैसा शूज पहना है महत्व देते हैं, गाड़ी कितनी कीमत की है, पड़ोसी से मेरी गाड़ी महंगी है, ये सब जो चीज है वो जब निकल जावे दिमाग से, अपने काम के लिए जो जरूरी है वो करेंगे हम, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, हमें काम तो करना ही है। और वो काम के लिए जो जो चीज की जरूरत पड़ेगी सब यूटिलाइज भी करेंगे। मगर फिर भी वो चीज का महत्व नहीं है, मेरे कर्तव्य का महत्व है। और जस्ट जैसे रश्मिन भाई, मेरे जैसे एक पॉइंट दो लिखे हुए थे, मैंने वो घर पे ही अच्छा, था। प्लीज प्लीज जस्ट जरूर। अब उसमें कुछ ऐड नहीं करना, जस्ट समराइज में जैसे आपने कहा कि जो वर्स नंबर 26 तक हम्म भगवान ने जो कर्म संन्यास, थर्ड में कर्म बताया और पांचवें में कर्म संन्यास बताया कि हम्म कर्म तो करना है, लेकिन वो एटीट्यूड कि ये मैं नहीं कर रहा, हाँ हाँ। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ये जो पूरा नॉलेज है वो भगवान 26th चैप्टर वर्स पे पूरा कर दे रहे हैं। हम्म 27th और 28th is are two beautiful verses that lay down the foundation for the next chapter. 27 और 28वें में हम्म समराइजिंग द नेक्स्ट चैप्टर और उसका ओके। पूरा फाउंडेशन रेडी कर रहे हैं। हम्म एंड मतलब 27 और 28 में ये हो गया, और वही बता रहे हैं कि आपको ध्यान कैसे करना है। सो नेक्स्ट चैप्टर इज ध्यान योग। बराबर और बराबर। 29th में वो बता रहे हैं कि अगर ये ध्यान इस तरीके से ध्यान करते हैं, हम्म मेडिटेशन करते हैं, तो 29 सेज आपको फल क्या मिलेगा। हाँ। तो दिस इज ब्यूटीफुली, मतलब जैसे मतलब बहुत अच्छा टीचर होता है जो जिस तरीके हम्म। से उसकी क्रोनोलॉजी सेट करता है, भगवान भी इसी तरीके से क्रोनोलॉजी सेट कर रहे हैं कि 26 में उन्होंने पूरा चैप्टर वो जो था कर्म संन्यास को कंप्लीट किया, 27-28 में फाउंडेशन डाली नेक्स्ट चैप्टर के लिए, और 29 में उन्होंने कह दिया कि अगर आप वो करोगे तो आपको और आगे क्या मिलेगा, और हमारी वो उत्सुकता बढ़ाई कि नाउ गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, आपको ये फल मिलने वाला है। बराबर है। एक्चुअली अशोक भाई को और यहाँ जितने भी सीए हैं उनको तो पता है, मैंने करीब 500 से ज्यादा लेक्चर दिए हैं, वो सब सीए सब्जेक्ट के लिए, इनकम टैक्स वगैरह के लिए। तो उसमें मैंने कहाँ पढ़ा था कि आपको अच्छा वक्तव्य कैसे दे सकते हैं, या तो उसका मतलब ये भी है कि आप कोई चीज़ को अगर पूरी समझना चाहते हैं, मतलब मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको अच्छी तरह से समझना है या किसी को समझाना है, तो कैसे करोगे। तो ये गीता की तरह से मुझे जो कहना है नेक्स्ट 1.5 घंटे में कहूंगा, वो पहले 2 मिनट में मैं समरी कह देता हूँ, उसके बाद मैं मेन बात करता हूँ, फिर 5 मिनट में मैंने क्या कहा उसको समराइज करता हूँ, और फिर क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन छोड़ता हूँ। तो ये टेक्निक कृष्ण भगवान ने गीता में हर एक सब्जेक्ट, मैं चैप्टर नहीं कहूंगा, एक चैप्टर के अंदर भी 2-3 सब्जेक्ट कभी कभी डिस्कस किए हैं भगवान ने। तो कोई भी सब्जेक्ट नया डिस्कस करेंगे उसके आगे उन्होंने कह दिया है कि अब ये सब्जेक्ट आ रहा है, फिर सब्जेक्ट के ऊपर 3 श्लोक आएंगे या तो 25 श्लोक भी आ सकते हैं, फिर समराइज करते हैं। क्योंकि गीता तो एक कॉम्प्लेक्स शास्त्र है, उसको समझना कठिन है, तो उसके लिए भगवान ने भी मोस्ट साइंटिफिक चीज यूज की है। ओके। अभी एक श्लोक और पढ़ेंगे तो फिर ये 5th चैप्टर अपना पूरा हो जाता है, और मे बी फ्रॉम नेक्स्ट मीटिंग वी कैन स्टार्ट विद द 6th चैप्टर।
मनुष्य जो भी कर्म करता है, यहाँ जरा डिफिकल्ट लैंग्वेज है, सभी यज्ञ और सभी तप का भोक्ता मैं हूं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। क्योंकि आप जो भी कुछ कर्म करो, आप अपने आप को बहुत बड़ा कर्म कर लिया मान लो, मगर वो कर्म का भोक्ता भगवान है। जो भी यज्ञ किए उसके भक्ता भगवान भगवान है। और पूरे संसार में, मतलब ये पृथ्वी की यहाँ बात नहीं है, सोलर सिस्टम की बात नहीं है, अपने ब्रह्मांड की भी बात नहीं, सभी ब्रह्मांड जो भूतकाल में हो गए, अभी है और भविष्य में भी होएगी, वो सभी चीज के, सभी के ईश्वरों का भी ईश्वर। जैसे कोई बोलेगा कि भाई मैं ये साधु को मानता हूँ, मैं स्वामी को मानता हूँ, मैं हनुमान की पूजा करता हूँ, मगर हनुमान से बड़े राम है, और राम से बड़े विष्णु भगवान है, और विष्णु से ऊपर कौन है? तो वहां कृष्ण भगवान कहते कि मैं हूँ। अभी कृष्ण भगवान राम से बड़े हैं, ऐसा कहना वो एक गलत बात हुई, मतलब समझे बगैर बात हुई। यहाँ कृष्ण भगवान अपने को कृष्ण की तरह नहीं कह रहे हैं, जिसे हम ब्रह्म शब्द कहते हैं। वो ब्रह्म खुद कृष्ण भगवान का अवतार लेके वहां बैठे हैं, और वो अर्जुन उनका लायक शिष्य है, इसके लिए उसी को कह रहे हैं, बाकी सब पब्लिक को ये नहीं कहते हैं। अर्जुन को कह रहे हैं मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूँ, सबसे ऊपर मैं हूँ। और मैं सुहृद, सुहृद भी एक अपनी संस्कृत भाषा का एक स्पेशल शब्द है। सुहृद मतलब मित्र, मतलब मित्र कौन? जिसे कोई स्वार्थ नहीं है और दूसरों को मदद कर रहा है, वो सुहृद है। और दूसरा उसका उपकार माने या ना माने, उसको थैंक्स कहे या ना कहे, वो तो दूसरों का हित ही करेगा। इसके लिए जो आगे शब्द यूज किया है, सर्वहित रताह, हाँ, जो उसको दूसरे के हित में ही रस है, ऐसा मैं हूं, ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं। और जो समझेगा, ये तो मैं तो कहा, मगर सामने वाला कौन मानता है? दुर्योधन कहाँ मानता है? वो तो ऑर्डर देता है कृष्ण भगवान को अरेस्ट करने का। हाँ, तो वो, उसको शांति प्राप्त नहीं होएगी, उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। शायद होगा, कुछ जन्मों के बाद होगा, जब भी वो कुछ जन्मों में ये सब उसके पाप कर्मों की सजा भुगत लेगा, फिर वो भी एक साधु बनेगा। और फिर जब वो पूरी चीज समझ लेगा, तब वो शांति को प्राप्त हो जाएगा, मतलब तभी उसका मोक्ष होएगा। अभी समझो एक बड़े साधु ने अपने को कुछ कहा, अभी साधु ने कहा है तो हम उसको विरोध तो कर नहीं सकते हैं, मगर वो बात हमारे दिल में नहीं बैठी, हमने दलील नहीं की, उसका मतलब नहीं कि हमने समझ लिया। ऐसी समझ की बात भगवान नहीं कर रहे। भगवान जो कह रहे हैं कि जिसके दिल में ये दृढ़ हो गया, जैसे युधिष्ठिर, सॉरी, अर्जुन और पांचों पांडव को पता था कि ये भगवान के भी भगवान है, कृष्ण भगवान यहाँ अवतार लिया है, बाकी वो सबसे ऊपर है। अभी ये भक्ति भाव की बात हुई, यहाँ अद्वैत लाने की बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ अद्वैत लाएंगे तो सब लॉजिकल विरोधाभास हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। यहाँ भक्ति भाव है, कृष्ण भगवान है, हम लोग इंसान हैं, और भगवान की बात सुन के हमें आगे अपना कर्तव्य करना है। ये चैप्टर का एंड में जो शब्द आते हैं हमेशा वो रिपीट करते हैं, ओम तत् सत इति। ये अभी जो कहा वो सत्य है। और फिर यहाँ कहते हैं कि पांचवा अध्याय पूरा हुआ। तो अभी हम
सिक्स्थ अध्याय शुरू करना चाहते हैं कि नया डेट नक्की करेंगे, या तो और किसी को भी कुछ भी कमेंट करनी है? I think let us fix the next date, or then in the next discussion we'll start with sixth chapter. हम्म 17th April, Okay, okay with me. Friday. हाँ, Friday evening 6 o'clock. हाँ 17 एप्रिल इज फाइन। बराबर। उसके पहले बीसीए की आरआरसी है, तो मतलब 10 तारीख को तो नहीं होगा। મીર ભાઈ, તમે આવવાના છો આરઆરસી માં? નહીં સર, અરે, તમારી પ્રેસિડેન્ટશિપ પાછી લઈ લેશે. હવે તો ઓલરેડી લઈ લીધી છે પાછી. Okay, so 17th is okay with everybody? Yes, Fine yes, with me. Yes, no yes, problem. yes. ओके, ठीक है। तो 17th इवनिंग को वी विल मीट एंड देन वी विल स्टार्ट विथ सिक्स्थ चैप्टर। ઓકે, ओके फ्रेंड्स, या यू वांट टू कमेंट થેન્ક समथिंग? યુ, થેન્ક યુ. ओके, बाय। हाँ Namaste. ચલો બાય. બાય. તે બંને